شہر قائد میں بڑھتے ٹریفک حادثات شہری غیر محفوظ۔ رات سے اب تک مختلف ٹریفک حادثات میں 4 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ جنوری کے ابتدائی 10 دنوں میں 23 افراد جاں بحق اور 261 زخمی ہوئے۔ شہریوں نے حادثات کا ذمہ دار حکومت کو قرار دے دیا۔ ٹوٹی سڑکوں اور ٹریفک پولیس کی لاپرواہی پر بھی سوالات اٹھا دیے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اسامہ ملک کی اس رپورٹ میں۔ شہر قائد میں بڑھتے ٹریفک حادثات شہری غیر محفوظ۔ رات سے اب تک مختلف ٹریفک حادثات میں 4 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ چمڑا چورنگی پر 25 سالہ عبداللہ، گھگر پاٹک کے قریب 32 سالہ فیض محمد، جبکہ شہید ملر روڈ پر 2 افراد موت کے منہ میں چلے گئے جن کی شناخت تاحال نہ ہو سکی۔ جنوری 2025 کے ابتدائی 10 دنوں میں ٹریفک حادثات میں جاں بحق ہونے والوں کا ڈیٹا سٹی 21 سامنے لے آیا۔ جنوری کے 10 دنوں میں 23 افراد زندگی کی بازی ہار گئے جبکہ 261 افراد زخمی ہوئے۔ ٹریفک پولیس کے مطابق ہیوی ٹریفک کو روکتے ہیں، چلان بھی کرتے ہیں۔ دن کے اوقات میں واٹر ٹینکر کو پل پر آنے کی اجازت نہیں۔ ہماری ٹریفک پولیس پل پر گشت کرتی ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ حادثات کم ہوں۔ بڑی ہیوی گاڑی آتی ہیں، ان کو 270 کی FIR کاٹتے ہیں اور ان کے لگا کارروائی کرتے ہیں، چلان کرتے ہیں، گاڑیوں ڈرائیور ارسٹ کرتے ہیں اگر کوئی گاڑی ہیوی گاڑی آ جائے تو۔ 7 سے لے کے 9 بجے تک ان کو الاؤ نہیں ہے، 9 بجے بعد جو رش کے ٹائم جو کہا تھا اس کے ٹائم الاؤ نہیں ہے۔ شہریوں نے حادثات کا ذمہ دار حکومت کو قرار دیتے ہوئے ٹوٹی سڑکوں اور ٹریفک پولیس کی لاپرواہی پر بھی سوالات اٹھا دیے۔ ٹینکر جو چل رہے ہیں، ٹینکر کو تو رات کے ٹائم پہ کھولنا چاہیے۔ اگر آپ اس ٹائم پہ کھولتے بھی ہیں، جیسے مثال ہے، تو کہنے کی بات ہے کہ ان کا سسٹم بنانا چاہیے۔ ٹھیے لگے ہوئے ہیں روڈوں پہ، کالونیوں میں، یہ ہٹائے جائیں، روڈ صاف کیے جائیں، جمپ بنائے جائیں تاکہ جمپ پہ آ کے گاڑی جو ہے رکے۔ ٹریفک حادثات ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ٹریفک پولیس والوں کی بھی تھوڑی بہت لاپرواہیاں ہیں، اور دوسری بات جو مین ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو روڈ ہے یہ بالکل روڈز خراب ہو گئے۔ سال 2024 میں مختلف حادثات میں 482 افراد جاں بحق ہوئے۔ جنوری کے شروع میں ہی 23 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں، جن میں 5 بچے اور 3 خواتین بھی شامل ہیں۔ اگر شہری ٹریفک قوانین پر عمل کریں تو حادثات میں کمی آ سکتی ہے۔ ساتھی رپورٹر اور کیمرہ ٹیم کے ساتھ اسامہ ملک، سٹی 21۔ گورنر کامران ٹیسوری نے بلائنڈ T20 ورلڈ کپ جیتنے والی قومی ٹیم کے لیے 5 لاکھ روپے کا اعلان کر دیا۔ بولے، گورنر ہاؤس کے دروازے کھلاڑیوں، طلباء سمیت سب کے لیے کھلے ہیں۔ رپورٹ کریں گے محمد حماد۔ بلائنڈ T20 ورلڈ کپ فاتح قومی ٹیم کی گورنر سندھ سے ملاقات۔ کامران خان ٹیسوری نے قومی بلائنڈ کرکٹ ٹیم کے لیے 5 لاکھ روپے کا اعلان کیا اور کہا سندھ میں طلبہ اور اسپورٹس مین یا کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے شخص کے لیے گورنر ہاؤس کے دروازے کھلے ہیں۔ چاہے وہ طلبہ طالبات ہوں، چاہے کھلاڑی ہوں، اسپورٹس مین ہوں، جو بھی مایوسی فیل کر رہا ہے، جسے وہ یہ سمجھتا ہے کہ حکومت کا تعاون نہیں مل رہا، اگر کوئی طالب علم سمجھتا ہے کہ اسے نہیں صحیح طریقے سے ایگزامن کیا گیا اس کے پیپرز کو، تو گورنر ہاؤس کے دروازے سبھی لوگوں کے لیے کھلے ہیں۔ گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ سب نے مل کر پاکستان کو ڈیفالٹ سے باہر نکالا۔ وزیر اعظم کو مبارکباد دیتا ہوں، آج PIA کی پرواز یورپ گئی۔ جن حالات میں معیشت چھوڑ کر وہ لوگ گئے تھے، تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس وقت یہ باتیں سامنے آتی تھیں کہ اللہ نہ کرے ہم ڈیفالٹ کی طرف چلے جائیں گے، لیکن PDM کی حکومت نے اس وقت اس معیشت کو سہارا دیا اور سب نے مل جل کر ڈیفالٹ سے پاکستان کو نکالا۔ آج آپ دیکھیں کہ میں اس پر بھی مبارکباد دیتا ہوں وزیر اعظم پاکستان کو کہ ان کی انتھک کوششوں سے آج یورپ کی فلائٹیں ہماری کھل گئی ہیں۔ گورنر سندھ نے ورلڈ کپ جیتنے والی قومی ٹیم کے ساتھ تصویر بنوائی اور مستقبل میں نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ کیمرہ مین محمد حماد، سٹی 21۔ ملک کی ترسیلات زر میں بڑا اضافہ ہو گیا۔ دسمبر 2023 کے مقابلے دسمبر 2024 میں ترسیلات زر 29% بڑھ گئی۔ اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز نے اضافے کو خوش آئند قرار دے دیا۔ نائب چیئرمین عدنان پراچا کہتے ہیں کہ ترسیلات زر میں بہتری معاشی مسائل کم کرے گی۔ رپورٹ کریں گے اشرف خان۔ حکومتی اقدامات، اعتماد بحال ہونے پر ترسیلات زر میں بڑا اضافہ۔ بیرون ملک پاکستان ورکرز نے ترسیلات زر زیادہ بھیجے۔ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق دسمبر 23 کے مقابلے 24 میں ترسیلات زر میں 29% کا ریکارڈ اضافہ سامنے آیا۔ مجموعی طور پر 3 ارب 10 کروڑ ڈالر موصول ہوئے، جبکہ دسمبر 23 میں ترسیلات زر 2 ارب 40 کروڑ ڈالر رہی تھی۔ ایک ماہ میں ترسیلات زر میں 6% اضافہ ہوا۔ مالی سال 6 ماہ میں ترسیلات زر 33% اضافے سے 17 ارب 80 کروڑ ڈالر سے تجاوز کر گئی۔ اوورسیز امپلائمنٹ
प्रोमोटर एसोसिएशन नाइब चेयरमैन अदनान प्राचा ने कहा, रुपए की कदर में इस्तेकाम, इंटर बैंक और ओपन मार्केट में डॉलर का फर्क कम होने और वफाकी वजीर दाखिला के सख्त इकदामात ने तरसीलात की जर की उड़ान तेज कर दी। 2024 का एंड क्लोजिंग आप देखें कि आपका ईयर टू ईयर क्लोजिंग देखें तो तकरीबन 35 अरब के करीब हुई है, और फिस्कल ईयर के हिसाब से देखें 2024-25 का तो तकरीबन 18 अरब के करीब हमारे 6 महीनों में रेमिटेंसेस आ चुकी हैं। तो इसके पीछे मैं पहले भी ये बारहा कह चुका हूँ और आज भी मैं यही चीज़ कहूँगा कि 3 मेजर फैक्टर्स हैं। एक हमारा वजारत दाखिला का क्रैकडाउन, और दूसरा हमारा आर्मी चीफ का पर्सनल इंटरेस्ट लेना रेमिटेंसेस को लेके स्पेशली, और तीसरा जो है हमारा ओवरसीज पाकिस्तानीज़ का एतमाद। अदनान प्राचा ने कहा कि साल 2024 में जनवरी से दिसंबर तक तरसीलात ज़र 34 अरब 65 करोड़ डॉलर मौसूल हुई। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि पाकिस्तानियों के लिए वर्क वीज़े का कोटा बढ़ाने के लिए फौरी इकदामात किए जाएं ताकि बरामदात के बाद तरसीलात ज़र बढ़ने से मुल्की माली मसाइल में बड़ी कमी हो। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। और नाजरीन, सिंध हाई कोर्ट समेत दीगर अदालतों में केसेस की समाअत और फैसलों के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। एक और हाई प्रोफाइल केस में सुलह हो गई। ट्रैफिक पुलिस अफसर की गाड़ी की टक्कर से सुजुकी ड्राइवर की हलाकत केस। मुलजिम शाहिद हंगोरो की जानिब से जुनूबी की अदालत में दरख्वास्त जमानत के साथ मुद्दई का सुलहनामा भी जमा। मुलजिम के खिलाफ थाना क्लिफ्टन में मुकदमा दर्ज है। मुलजिम मोमिनाबाद में बतौर सेक्शन अफसर तैनात था। इलेक्ट्रिक शॉक देकर शहरी शाह जमान को कत्ल करने का केस। गरबी की अदालत ने मुलजिम गुलाम नबी उर्फ दीदार को सजाए मौत सुना दी। कत्ल में शामिल मकतूल की बीवी अस्मा को उम्र कैद की सजा। दोनों मुलजिमान पर फी कस 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया। जुर्माने की रकम मकतूल के वर्सा को अदा की जाएगी। अगवा बराए तावान और पुलिस मुकाबले और बारूद मवाद के मुकदमात। सिंध हाई कोर्ट ने असमतुल्ला समेत 4 मुलजिमान की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने गलत एंट्री पर तफ्तीशी अफसर को मुअत्तल करने की हिदायत कर दी। जिना अस्पताल के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर शाहिद रसूल की तैनाती केस। 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच का नोटिफिकेशन मुअत्तली का फैसला कल अदम करार दे दिया। 2 रुकनी बेंच ने डॉक्टर शाहिद रसूल को बतौर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बहाल कर दिया। महकमा आबपाशी में भर्तियों से मुतालिक दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। सुपर हाईवे पर निजी हाउसिंग सोसाइटी से गाड़ी चोरी का केस। सिंध हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अकीदत। जामिया कराची में 17वीं बरसी पर सेमिनार। नजमी आलम बोले, दोख्तर मशरिक ने 22 साल की उम्र से जद्दोजहद शुरू की। सूबाई वज़ीर शाहिनिया शेर अली ने बेनज़ीर भुट्टो को ख़वातीन के लिए मशअल राह करार दिया। आपको बताते चलें कि दोख्तर मशरिक ने 22 साल की उम्र से जद्दोजहद शुरू कर दी। सूबाई वज़ीर शाहिना शेर अली ने बेनज़ीर भुट्टो को ख़वातीन के लिए मशअल राह करार दिया। रिपोर्ट करेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद। बेनज़ीर भुट्टो शहीद को खिराज अकीदत पेश करने के लिए जामिया कराची में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें शहीद बीबी की मुल्क व कौम के लिए पेश की गई खिदमात पर रोशनी डाली गई। के मशीर नजमी आलम ने सेमिनार से खिताब में कहा कि सियासत में मिडिल क्लास तबके को स्टूडेंट यूनियन के जरिए आगे लाना इंतहाई नागुज़ीर है। बेनज़ीर भुट्टो ने डेमोक्रेसी के लिए जद्दोजहद की। बेनज़ीर साहिबा एक कि उनकी सोच, उनका कमिटमेंट, किसी भी काम को करने के लिए कमिटमेंट बहुत ज़रूरी होती है कि आप उस काम से कितने कमिटेड हैं। अगर आप अपने काम से कमिटेड हैं तो आप उस काम को कर पाएंगे। अगर आप कमिटेड नहीं हैं तो आप उस काम में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। सूबाई वजीर शाहीना शेर अली ने कहा कि बीबी शहीद खवातीन के लिए भी मशअल राह हैं। एक औरत जब निकलती है ना तो कई चैलेंजेस उसके साथ साथ निकलते हैं। ये नहीं करो, वो नहीं करो, यानी कि तमाम चीज़ों के बावजूद आज एक यूनिवर्सिटी में खड़े होकर जब हम आपसे बात कर रहे हैं ना तो ये भी सोचते हैं कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वो पाकिस्तान की लीडर थी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके क्लासेस देती थी। इस मौके पर शेखुल जामिया प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी ने बेनज़ीर भुट्टो शहीद की कुर्बानी और खिदमात पर रोशनी डाली। पाकिस्तान में एक फेडरल स्ट्रक्चर हो, बिकॉज पाकिस्तान इज अ फेडरल सोसाइटी। If you have a federal society, what you need is a federal structure.
तकरीब में तलबा और असातिज़ा ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमान गिरामी को एजाजी शील्ड से भी नवाजा गया। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। जिला वस्ती इंतजामिया और रोटरी क्लब के ताउन से 5वीं फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाजिमाबाद हुमैर अहमद के मुताबिक अमराज की तशखीस और मुफ्त अद्वियात फराहम की जाएंगी। रिपोर्ट करेंगे रिजवान अहमद। बस्ती के असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीजन नॉर्थ नाजिमाबाद हमीर अहमद कुरैशी ने सेक्टर 15B बफर जोन में 5वीं वेलफेयर मेडिकल कैंप का इफ्तिताह कर दिया। बोले मेडिकल कैंपों से आवाम को फायदा मिल रहा है। फीडबैक इसका बहुत पॉजिटिव मिला है, क्योंकि ये तमाम ऐसे इलाकों हमने चूज़ किए हैं मेडिकल कैंप लगाने के लिए जहाँ पे लोग परेशान हैं, जहाँ पे लोगों के पास इतनी माली इस्तात नहीं है कि वो मेडिकल को अवेल कर सकें। तो उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे गरीब जो लोग हैं वो माहौलियाती तब्दीली के नतीजे में रोनमा होने वाली बीमारियों से इलाज अपना करवा सकते हैं। रोड़ी से सिटी के सेफ इंतारिया बोले मेडिकल कैंपों से अमराज का रिकॉर्ड मरतब कर रहे हैं। अगले मरहले में मखसूस अमराज के कैंप होंगे। पहले फेज के अंदर हम उसको जनरल ओपीडी करें, जिससे हमारे पास एक डेटाबेस भी कलेक्ट हो जाएगा कि जी यहाँ बेसिक बीमारियाँ क्या है। पिछले 4 का हमारे पास डेटा मौजूद है कि जी वहाँ ज़्यादा उस इलाके में बीमारियाँ क्या है। मेडिकल कैंप की सहूलत मिलने पर शहरी भी मुतमईन दिखाई दिए। कहते हैं इन्हीं कैंप से मर्ज की तशखीस और अद्वियात की सहूलियात मुफ्त हासिल होंगी। फ्री कैंप लगा है, फ्री में दवाई दिया है और डॉक्टर साहब को दिखाया। बच्चों को नज़ला खांसी बुखार थे, मौसमी बुखार, तो डॉक्टर को दवाई लिख के दिया और यहाँ से दवाई ले ली है। फ्री कैंप लगा है तो मैं छोटे बच्चे को दिखाने आई थी, अपने इसको बुखार था, दवाई फ्री मिली है, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। गैर फितरी माहौल के बाइस बढ़ते अमराज के खात्मे के लिए ऐसे मेडिकल कैंप का इनेकाद पब्लिक प्राइवेट शहरियों ने सिलसिले के दायरा कार को वसी करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन इमरान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। मेयर कराची की जानिब से फेयर हॉल में 3 रोज़ा फूलों की नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया गया। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के मुताबिक नुमाइश में 1 लाख से ज़ायद फूल रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि शहर में दहाइयों से मसला इख्तियारात का और फंड्स का नहीं बल्कि नीयतों का रहा है। इक़्तिदार में आने के बाद तराजू मुसलसल लड़खड़ा रहा है। तफसीलात शोएब मुख्तार की इस रिपोर्ट में देखिए। 5 साला फूलों की नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए काम जारी रखने का वादा किया। जमात इस्लामी को मनफी सियासत छोड़ने का मशवरा भी दे दिया। फेरियर हॉल में फूलों की नुमाइश की तकरीब से खिताब में बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब बोले कि ये शहर मुल्क का माशी हब है। बदकिस्मती से माजी में कुछ अनासिर ने इसे टीटी, बोरी बंद और खौफो हिरास के शहर में तब्दील कर दिया था। यहाँ दिहाइयों से मसला इख्तियारात और फंड्स का नहीं, नियतों का रहा है। नियत है काम करने की तो काम किया जा सकता है। आज आपको ये खुशगवार कराची, अच्छा कराची नज़र आ रहा है और ये फ्लावर शो हमने पिछले चंद सालों में इसलिए मुतारिफ कराया कि हमारा शहर बदकिस्मती के साथ, जो कि इल्म व दानिश का शहर था, किताबों का शहर था, कलम का शहर था, अदब का शहर था, वो शहर टीटी का शहर हो गया, वो शहर बोरी बंद लाशों का हो गया, वो शहर पहिया जाम हड़तालों का शहर हो गया, वो खौफ का शहर हो गया। मेयर कराची ने जमात इस्लामी को मनफी सियासत से गुरेज करने का मशवरा दिया। कहा बदकिस्मती से बल्दियाती इंतखाबात में तराजू के फरिश्ते आ गए तो अब तक लड़खड़ा रहे थे और केएमसी की जमीनों पर भी रोड कटिंग की इजाजत दे रहे हैं। तराजू का काम है रोड कटिंग देना या नहीं देना। माशाल्लाह उन फरिश्तों ने केएमसी की सड़कों पे भी रोड कटिंग की इजाज़त दी है। मैं सवाल पूछता हूँ, लोगों के घरों में गैस आ रही है? इस वक्त गैस मौजूद है? गैस है नहीं, लेकिन रोड कटिंग की इजाज़त दी जा रही है। तो ज़रा ये सवाल नॉर्थ नाजिमाबाद टाउन के जो चेयरमैन हैं उनसे पूछिएगा कि भाई आपने रोड कटिंग की परमिशन क्यों दी। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए काम जारी रखने के अज़म का इजहार किया। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है, अवामी मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। कैमरामैन राना जहांजेब के साथ शोएब मुख्तार, सिटी 21। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जना टाउन की जानिब से अवाम के लिए बड़ा तोहफा। मीर अली पर्दा पार्क में 5 रोज़ा फूलों की नुमाइश सज गई है। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। नमरा रियासत की ये रिपोर्ट।
मौसम बहार की आमद के साथ ही हर तरफ कुदरत के रंग बिखर गए। जिन्ना टाउन की जानिब से मीर अली पर्दा पार्क में फूलों की नुमाइश सज गई। नुमाइश में मुख्तलिफ इक़साम और रंगों के फूल तवज्जो का मरकज बन गए। 5 रोजा फूलों की नुमाइश का इफ्तिताह अमीर जमात इस्लामी कराची मोहन्नम जफर ने टाउन चेयरमैन रिजवान अब्दुल समी और इंजीनियर अब्दुल अजीज के हमरा किया। मोहन्नम जफर ने अपने खिताब में कहा कि मिनी पाकिस्तान सूबे का 95% बजट अदा करता है, इसलिए ये ऐसी खुशगवार सरगर्मियों का मुस्तहिक है। मिनी पाकिस्तान है तो ये शहर कराची है। अगर सबसे ज्यादा टैक्स देता है तो वो ये शहर कराची है। सूबे के बजट का 95% अदा करता है तो वो भी ये शहर कराची है। इस बात का मुस्तहिक है कि इस शहर के अंदर इस तरह की नीतियों को तेज देना चाहिए है, इनको प्रमोट करना चाहिए है। टाउन चेयरमैन रिजवान अब्दुल समी और इंजीनियर अब्दुल अजीज का कहना था जो वादा किया था इसे पूरा कर रहे हैं। इस नुमाइश से महंगाई से परेशान शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं। लेकिन आज के दौर में जहाँ लोग बेचारे महंगाई में पिसे हुए हैं, वहाँ पर अगर आप यहाँ के मोहल्ले के लोगों को आपके इन फूलों को देखने से, आपके इस बाग को देखने से अगर उनका दिल खुश हो जाता है तो आपने एक बड़ा नेकी का काम किया है। जो तरक्याती कामों के हमने वादे किए हैं इंशाअल्लाह उसको पाए तकमील तक भी पहुंचाएंगे और आवाम को जो वादे हमने किए थे उसको हम पूरा करके जाएंगे। जमाते इस्लामी टाउन इंतजामिया के तहत न्यू एमए जिना रोड मीर अली पर्दा पार्क में सजी फूलों की नुमाइश 15 जनवरी तक जारी रहेगी। कैमरामैन जानशर बलोच के साथ नम्रा रियासत सिटी 21।